نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس سے شادی کبھی نہیں بابا۔ وہ بھاگتی ہوئی دلہن کے لباس میں اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ بابا جانی کہاں ہیں آپ؟ بابا جانی میں تو سب کی لاڈلی ہوں نا، پلیز بابا میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے۔ اسد صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بڑی مہارت سے چھپا گئے تھے۔ بیٹا آپ میرے بہادر بچے ہو، یوں نہ کرو، ہم سب پر بھروسہ رکھو۔ آپ کے آغا جان ہسپتال میں انتظار کر رہے ہیں، کیا تمہیں لگتا ہے کہ انہیں انتظار کروانا چاہیے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ نور نور بیٹا۔ جی بابا۔ اس کی آواز اسے کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو بابا کی جان۔ نور نے آخری بار کسی امید سے اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ 20 سالہ نور اپنے بابا کے ساتھ دلہن کے لباس میں ہسپتال روانہ ہو چکی تھی۔ ذہن میں عجیب خیالات ستا رہے تھے کہ کیا انہوں نے اسی لیے انہیں لاڈ سے پالا تھا کہ اتنی بڑی قربانی کے لیے؟ آغا جان کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑے عسکر صاحب، ان کی بیوی عالیہ جو کہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، ان کے 2 بیٹے علی اور زین، اس سے چھوٹے اکرم صاحب، بیوی آمنہ اور اس کا ایک بیٹا عامر، پھر ان دونوں سے چھوٹی بہن مناہل جو دبئی میں رہائش پذیر تھی، اور سب سے چھوٹے اسد صاحب جن کی اکلوتی بیٹی نور تھی۔ آغا جان کی بیٹی کے علاوہ سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جب اکرم صاحب نے شادی کے بعد الگ ہونے کی خواہش کی تو آغا جان نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی الگ نہیں ہوگا۔ ان کی بات ہی گھر کا آخری فیصلہ مانی جاتی تھی۔ نور گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ سب اسے بے حد چاہتے تھے۔ لمبی گھنی پلکوں والی، گورا رنگ، نازک سی، سب کی توجہ کا مرکز تھی وہ۔ وقت بھی کیا چیز ہے کہ جس لڑکی کی ضد پوری کرنے کے لیے پورا گھر تیار رہتا تھا، آج وہ سب کی ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ ہاں وہ ہار ہی تو گئی تھی۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات تھی جب گھر میں علی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی، اور ان میں سب سے آگے نور تھی جو پورا گھر سر پہ اٹھائے پھر رہی تھی۔ آغا جان کے بھائی کی پوتی کے ساتھ علی کا رشتہ طے ہوا تھا۔ علی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی عمر 35 سال ہو چکی تھی، مگر وہ بالکل بھی اتنی عمر کا نہیں لگتا تھا۔ گورا رنگ، اونچا قد، سنجیدہ طبیعت کا مالک۔ گھر میں بڑا ہونے اور سنجیدہ مزاج کی وجہ سے سب بچے اس سے دور رہتے تھے۔ وہ کسی سرگرمی میں شامل نہیں کرتے تھے اسے۔ علی کی شادی عروج سے ہونا تھی۔ گھر کے بڑے ہال میں سب اپنی تیاریوں پہ بات کر رہے تھے کہ آغا جان نے کہا، نور جی شادی کی تیاری کیسی ہے؟ تیاری تو نہ ہی پوچھے آغا جان، اس نے تو ایسی تیاری کی ہے جیسے علی کی نہیں اس کی اپنی شادی ہو۔ یہ آواز آغا جان کی بہو آمنہ کی تھی، جس پر نور کا منہ پھول گیا اور سب ہنسنے لگے۔ اسی دوران بچوں کی محفل لگی۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ زین کھڑکی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر ایک کار داخل ہوئی، جسے دیکھ کر سب دروازے کی طرف لپکے۔ السلام علیکم بچوں۔ سرمد صاحب بچوں سے ملتے ہی جلدی اندر آ گئے تھے۔ سب ایک دوسرے کے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر ان میں ایک شخص بخوبی جانتا تھا کہ وہ کیوں آئے ہیں، وہ بھی اکیلے اور بہت جلدی میں۔ بھائی صاحب پلیز میری بات آرام سے سنیں۔ میں مانتا ہوں نیلم کی غلطی ہے، اسے یہ سب بتانا چاہیے تھا۔ غلطی؟ اس پر آغا جان چیخ اٹھے۔ سرمد تمہاری ہمت پر حیران ہوں میں، کبھی تم سے ایسی کمزرفی کی توقع نہیں تھی مجھے۔ زین سے شادی کر کے تم دونوں بھائیوں کی جدا کرنا چاہتے ہو، ایک ہی چھت کے نیچے کیسے رہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑے بھائی کی منگیتر نے چھوٹے بھائی سے شادی کر لی؟ سرمد نے کہا، بھائی صاحب اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہمیں بچوں سے پوچھنا چاہیے تھا۔ واہ واہ بڑی جلدی یاد آ گیا تمہیں، میں شرمندہ ہوں بھائی صاحب، میں نیلم کے ساتھ زیادتی۔ آغا جان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زیادتی؟ نیلم کے ساتھ نہیں، علی کے ساتھ ہوگی، تم ابھی گھر جاؤ۔ اور وہ منہ موڑ چکے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ابھی وہ مزید بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ آغا صاحب جانتے تھے کہ یہ سب جاننے کے بعد علی اور نیلم کی شادی دونوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ کیا ہوا ہے آغا جان؟ چاچا جان سب خیریت تو ہے نا؟ ظفر صاحب آغا جان کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکے تھے۔ ظفر آغا جان کا ہاتھ تھام کر وہ پاس بیٹھے۔ کیا بات ہے آغا جان، بول دیجئے۔ آغا جان نے باہری آواز میں کہا، ظفر میں اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تم جانتے ہو نا۔ جی آغا جان، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے خود اپنے بچوں کو اپنی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آغا جان نے جواب دیا، ہمارے بچے بہت سمجھدار ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ظفر سب کو بلاؤ۔ جی آغا جان، اور پھر اپنی پریشانی سب کو بتا دی۔ یہ آپ نے کیسی بات کی ہے چاچا جان؟ میں اپنے بچے کے ساتھ ایسا ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ صدف تھی جس نے عالیہ بھابی کے جانے کے بعد علی اور زین کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا تھا۔ صدف جی
आगा जान, सरमत ठीक कहता है, हमें बच्चों से पूछना चाहिए था। मुझे याद है उस दिन भी सरमत ने कहा था कि नीलम से पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा नीलम बेटी को क्या इतराज होगा। अली बहुत मुश्किल से शादी के लिए माना है, अब देर नहीं करना चाहता। बस फिर 15 दिन बाद हमें बारात लेकर जाएंगे। अगले दिन हम मंगनी के लिए गए। नीलम से पूछना चाहिए था। और जैन, सबने आगा जान की तरफ देखा जैसे अगला फैसला जानना चाहते हो। मुझे इन जैन और नीलम की शादी पर कोई एतराज नहीं है। आगा जान फिक्र न करें, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अली जो दरवाजे में खड़ा सब सुन रहा था, आगा जान को तसल्ली देने लगा। आमना, मेरे पास इस मसले का एक हल है। सबकी नजरें उस पर जम गई। हम अली और जैन की शादी एक साथ करेंगे। तुम क्या कह रहे हो आमना? जफर साहब उसकी बात पर हैरान हुए। 2 दिन बाद शादी है, और अली की शादी मगर किससे? नूर से करा दो। जैसे आमना ने सब पर बम फोड़ दिया था। भाभी ये अब क्या कह रही हैं? वो बच्ची है। सदफ ने जैसे फरियाद की। बच्ची? 20 साल की बच्ची नहीं होती सदफ। वैसे भी 2 या 4 साल बाद आपने उसकी शादी तो करनी ही है ना। भाभी वो अली से काफी छोटी है। अली की मौजूदगी की वजह से सब झिझक से बात कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं था कि सदफ ने अली, जैन और नूर में कभी फर्क नहीं किया था, मगर ये भी जानती थी कि नूर घर में इकलौती होने की वजह से सबकी लाडली है। हर जिद पूरी की जाती है जिसने नूर को बड़ा होने ही नहीं दिया। असद साहब बोले, आगा जान जैसे आप चाहें वैसा ही होगा, बस मुझे अली से बात करनी है। उनकी बात समझते हुए सब लोग बाहर चले गए। अली मेरे पास आओ। जी आगा जान, तुम ठीक हो? आगा जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा यकीन करें मैं अपने भाई की खुशी में खुश हूँ। फिर नूर के बारे में तुम्हारा क्या फैसला है? आगा जान जैसा आप सबको बेहतर लगे, बस नूर की रजा को बहुत अहमियत दी जाए। ये सुनकर खुशी की बजाय एक बोझ सा महसूस हुआ। अली कमरे में आया, फ्रेश होकर आंखें मूंदी। क्या वाकई अल्लाह ने मेरी चाहत कबूल कर ली? मुझे बिन मांगे अता कर दिया? अली को नूर से मोहब्बत थी। उसके कहे बगैर उसकी हर बात समझ जाना, हद से ज्यादा उसकी फिक्र करना, यही वजह थी कि हर बात में वो रोक टोक करता था। मगर अली जानता था कि ये मुमकिन नहीं, इसलिए खुद को महदूद कर लिया था। सबसे अलग रहना पसंद करता था। वो शादी से हर बार इनकार तो कर सकता था, मगर दिल की बात किसी से कह नहीं सकता था। नूर, नूर बच्चे कहाँ हो? असद साहब नूर के कमरे में खड़े आवाजें दे रहे थे। जी बाबा जान, आपकी जान इधर है। नूर जो कब से चेंजिंग रूम में कपड़े देखने में मसरूफ थी, बाबा की आवाज पर हाजिर हुई। असद साहब ने नूर को प्यार किया और बैठने को कहा। जी बाबा। नूर, मेरा बच्चा क्या कर रही हो? बाबा जान हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं ना, खाना भी बाहर ही खाएंगे। नूर अपनी बात में मसरूफ थी कि असद साहब ने उसे करीब बुलाकर कहा, नूर यहाँ मेरे पास आओ। मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, अपने बाबा की बात बहुत अच्छे से सुनेगी और इसे समझने की कोशिश करेगी। क्या हुआ बाबा जान, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? नूर अपनी बातों में मगन थी, मगर पापा को देखकर परेशान हो गई। मेरा बच्चा, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, सबसे बढ़कर इतनी प्यारी बेटी दी है। बाबा जान आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? असद साहब ने नूर का हाथ अपने हाथों में लिया। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं बेटा। जल्दी नहीं है, बस बहुत जल्दी है। 1 दिन बाद। असद साहब सब कुछ नूर को बता चुके थे। नूर बड़ी बड़ी नम आंखों से बाबा को देख रही थी और अचानक खड़ी हो गई। बाबा जान प्लीज। उसके हाथों की कपकपाहट असद साहब महसूस कर चुके थे। बचपन से वो ऐसी ही थी। परेशानी या खौफ में उसके हाथ कांपने लगते थे। असद साहब ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे। नूर बेटा यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो मेरी जान। नहीं बाबा जान, मगर वो इतना ही कह पाई, फिर फूट फूट कर रोने लगी। असद साहब ने नूर को प्यार किया और कमरे से बाहर निकल गए। वो चाहते थे कि नूर को सोचने का वक्त मिले। नूरे जाने जिगर, मेरा सर दर्द कहाँ है? आमिर नूर को आवाज देता कमरे में आया, मगर सामने का मंजर देखकर रुक गया। नूर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तुम जाओ, कुछ नहीं हुआ। शॉपिंग पर जाना था ना, चलो उठो, बाकी रास्ते में पूछ लूंगा, चलो। आमिर ने नूर का हाथ पकड़ा, मगर उसने झटक दिया। नहीं जाना मुझे कहीं भी, प्लीज जाओ। मुझे नहीं बताओगी क्या हुआ है? नहीं, बताओ ना प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ। ओके। आमिर जा चुका था। आगा जान मेरी बच्ची को इस इम्तिहान में ना डाले। सदफ अभी भी आगा जान से मिन्नत कर रही थी। सदफ, अली में क्या कमी है? कुछ नहीं आगा जान, कोई कमी नहीं है मेरे शहजादे में। मैं तो बस ये कह रही हूँ। कुछ ना कहो सदफ, जाकर नूर को समझाओ।
सब शॉपिंग करने जा चुके थे और आमिर ने सबको बताया कि नूर की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आई। उसने इनकार किया था, लेकिन आमिर के दिलो दिमाग में अब भी नूर का ख्याल बसेरा किए हुए था। सदफ को अपनी बेटी का सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। नूर ने रात खाने से भी इनकार कर दिया था। जैन भाई नूर से बात करने उसके कमरे में आए, मगर सामने जैन और अली को बात करता देख वो वहीं रुक गई। सूजी हुई सुर्ख आंखों के साथ वो जैन से कुछ कहने आई थी। वो दोनों समझ गए थे। नूर दरवाजे में हाथों को एक दूसरे में जगड़े खड़ी थी। उसे हालत में देखकर अली के दिल को कुछ हुआ। उसका दिल चाहा कि अभी वो नूर के हार अपने हाथों में ले ले, मगर खुद को रोककर वहां से चला गया। जैन भाई नूर उसके करीब आई और कहा, प्लीज तुम आगा जान से बात करो। जैन ने कहा, प्लीज मेरी बात सुनो नूर, मैं नीलम के बगैर नहीं रह सकता। बहन मेरी बात को समझो, फिर मुझे इस सब से निकालो। आगा जान से बात करो वरना मैं अपनी जान ले लूँ। ये सुनकर जैन के दिल में खौफ जागा। उसने कहा कि होश में रहो, कुछ गलत मत सोचो मेरी बहन। लेकिन नूर मजिद थी कि वो आगा जान से बात करे। मनाहिल फूफो भी पास ही खड़ी थी। नूर ने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। उसके लबों से निकला कि मुझे दुश्मन की जरूरत ही नहीं, उसका किरदार ये सब निभा रहे हैं। नीलम जैन भाई आगा जान बताएं, फूफो में कहाँ खड़ी है आपके मसलों में? अगर मेरी कोई जगह और हो तो कभी ना मानती। आगा जान ने उसे समझाया कि अली में क्या बुराई है। नूर ने कहा कि बुराई कोई नहीं है, अक्रूर सर्द मिजाज और अपने आप में रहने वाला है, खुद को जाने क्या समझता है। मैं तो कह रही हूँ कि आप अली भाई से पूछें, वो खुद इनकार कर देंगे। जैन ने कहा, वो एक समझदार और मेजोर लड़का है। नूर ने कहा, यही तो कह रही हूँ कि मेरा और इसका कोई जोड़ नहीं है, वो मेरे भाई की तरह है। अली ने कहा कि भाई नहीं है ना नूर, बस करो मेरे बच्चे। नूर को हर दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। वो आगाजान के कमरे की तरफ पड़ी। मनाहिल फूफो भी पीछे पीछे गई, मगर दरवाजे पर ही रुक गई। नूर आगाजान के कदमों में बैठ के रोते हुए कहने लगी थी कि मेरी जिंदगी में आने वाले तूफान को रोक दे आगाजान। आगाजान ने इसे करीब बिठाकर कहा, तुम हमारी जान हो, हमारी रौनक हो, हमेशा हमारे पास रहोगी। मगर नूर जानती थी कि इसकी आखिरी कोशिश है। अगर फैसला ना बदला तो अपनी जान ले लेती। ये कहकर वो बेहोश हो गई। आगाजान की आवाज पर मनाहिल पुप्पो अंदर आई और रात उनके लिए वो बहुत भारी साबित हुई। सुबह नूर की आंख खुली तो सर में शदीद दर्द था। इसने माँ को देखा। माँ ने गुस्से से कहा, नूर ये तुम्हारी तरबियत तो नहीं थी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया है? नूर ने रोते हुए कहा, मामा मैं तो अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। माँ ने कहा, तुम आगा जान को अस्पताल पहुंचा चुकी हो, अब क्या इरादा है? नूर हड़बड़ाकर खड़ी हुई। पूछा, आगा जान को क्या हुआ? मैं उनसे माफी मांग लूंगी, जो कहेंगे मानूंगी। सद्दफ भी बेटी की हालत देखकर रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। कहा, अपना हुलिया दुरुस्त करो, आज मेहंदी है, जल्दी आ जाना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। नूर जैन के साथ अस्पताल रवाना हुई। वहां पहुंचकर सबसे पहले अपने बाबा के गले लगकर माफी मांगी। आगाजान को देखकर रोते हुए कहा, आगाजान मैंने आपको बहुत दुख दिया, प्लीज माफ कर दे। आगाजान ने प्यार से कहा, मेरी बेटी आ गई तो मैं बिल्कुल ठीक थी। और समझाया कि तुम्हें अंदाजा हो गया, हमारे फैसला तुम्हारे हक में ही था। नूर उनसे मिलकर बाहर आई और जैन का इंतजार करने लगे। मगर जैसे ही जैन को अली के साथ आता देखा तो रुख मोड़ लिया। ये बात अली ने भी महसूस कर ली थी। उसने कहा, नूर मुझे चाचा जान ने कुछ काम कहा है, तुम भाई के साथ घरे चले जाओ। नूर का दिल चाहा कि कहते मैं खुद चली जाऊंगी, मगर खामोश रही। वो अली के पीछे चल दी। रास्ते भर अली ने बात करने की कोशिश की, मगर नूर के हालात देखकर वो खामोश रहा। नूर अपने हाथों को मुसलसल जगड़े हुए थी और दिल में यही सोच रही थी कि अली खुद इनकार कर देगा। मगर उसे अली पर शदीद गुस्सा भी था। कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उठकर तैयार होने चले गए। नूर ने पॉलर जाने से भी इनकार कर दिया। फिर पॉलर से लड़की को खास तौर पर नूर को तैयार करने के लिए बुलाया गया, मगर नूर बजिद थी कि मुझे मेकअप नहीं करवाना। क्यों शादी मेकअप के बगैर करवानी है? अंदर ही अंदर नूर का दिल ने जवाब दिया, ये शादी नहीं, ये जनाजा है। नूर ये सोचकर दिल ही दिल में दबाए बैठी रही। दूसरी तरफ नीलम और जैन खुशगपियों में मसरूफ थे। नीलम मेहंदी के जोड़े में नहायत हसीन लग रही थी और नूर ग्रे कलर की फ्रॉक में किसी शहजादी से कम ना थी। वो अपनी माँ सदफ का हाथ पकड़े बैठी रही और सदफ की बहुत कोशिशों के बावजूद भी नूर ने उनका हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अली ने आज पहली बार नूर को इतना तैयार देखा तो दिल ही दिल में कहा, मेरी मोहब्बत मेरे दिल में रहती हो तो क्या मैं कभी नूर को पा सकूंगा? नीलम ने सुर्ख रंग का लहंगा पहना था
जिस पर सुनहरी काम हुआ था वो बहुत प्यारी लग रही थी। सबने दुआ दी कि अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नूर जो कब से खड़ी इंतजार कर रही थी, सदफ और मनाही नूर को लेने गाड़ी तक गई। जैसे ही नूर हॉल में दाखिल हुई, सबकी नजरें उस पर उठ गई। लाइट पिंक लहंगे में नूर गुड़िया जैसी लग रही थी। उसे अली के साथ बिठाया गया, जहाँ एक तरफ नीलम और जैन खुश थे, वहीं अली के दिल में हजारों वसवसे गर गए थे। निकाह का वक्त आन पहुंचा और नूर अभी भी दिल में दुआएं मांग रही थी कि या अल्लाह ये कोई ख्वाब हो। मौलवी साहब कलमात पढ़ रहे थे और नूर दुआओं में मशगूल थी कि सदफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नूर ने आंखें खोली तो आंसू बहने लगे। ये कोई ख्वाब नहीं था। मौलवी साहब ने पूछा, क्या आपको निकाह कबूल है? और निकाह नामा नूर के सामने रख दिया। नूर ने आखिरी बार आका जान की तरफ देखा, जिन्होंने सर पर हाथ रख के तसल्ली दी, और नूर ने आंसू बहाते हुए दस्तखत कर दिए। उस समय वो सोच रही थी कि सबने मिलकर उसे कैद कर दिया है। अब वो जिंदगी भर इसी कैद में डरते सहमते गुजर बसर करेगी। वही शख्स जिसकी वजह से वो भूखी कॉली जाती थी कि कहीं उसके साथ न जाना पड़ जाए, जिसकी आवाज आते ही कमरे में जा छुपती थी, जो हमेशा गुस्सा करने की बजाय बहाने ढूंढता था, अब उसकी गिरफ्त में आ गई थी। निकाह के बाद नूर हॉल में मम्मा से बात करना चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि गाड़ी में अली की मौजूदगी में बात न कर पाएगी। मगर जैसे ही लब खोले, सदक ने रोक दिया कि अब कोई बहस वाली हरकत, बच्चों वाली हरकत मत करना, शादी हो गई है तुम्हारी। नूर को अपनी बात कहना बेमायनी लगा और गाड़ी में भी उसने मामा के साथ बैठने की जिद की। सदफ को मजबूरन नूर के साथ बैठना पड़ा। नूर मुसलसल अपना हाथ जकड़ रही थी, तो सफदर ने उसका हाथ अपने हाथों में देकर कहा कि अब रिलैक्स हो जा। घर पहुंचते ही दोनों जोड़ों को बिठाकर कुछ रस्मात अदा की गई और सबको कहा गया कि अब जाकर आराम करो, क्योंकि कल वलीमा है। नीलम और जैन अपने कमरे में गए और नीलम जैन ने भी नया सफर शुरू किया। नूर और अली को भी कमरे तक छोड़ दिया गया। अली कमरे में आकर फौरन फ्रेश होने चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि नूर रिलैक्स हो जाए। दूसरी तरफ जैन नीलम से कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ ऐसे हो गया। मैं सबको खुश रखना चाहता था, मगर नूर के लिए ये भी बुरा उसे लग रहा था कि अचानक उसकी शादी कर दी गई थी। नीलम ने हंसते हुए कहा कि अब छोड़ भी दो और मेरी मुंह दिखाई दो। इधर अली फ्रेश होकर आया तो नूर अब भी हाथ जकड़े खड़ी थी। अली ने कहा, सारी रात यूं ही खड़ी रहोगी क्या? उसने नूर की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नूर 2 कदम पीछे हट गई और बामुश्किल कहा, मुझे अपने कमरे में जाना है। अली करीब आया और बोला, क्यों, मेरा कमरा अच्छा नहीं है क्या? नूर कुछ ना कह सकी। उसके हाथों की कपकपाहट बढ़ गई। अली ने उसके हाथ थामे तो नूर घबरा गई और कहा, प्लीज नहीं। अली फौरन पीछे हट गया और कहा, ओके, तुम रिलैक्स रहो। फिर नूर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। इससे पहले कि वो दस्तक देती, अली की गर्जदार आवाज ने उसके हाथ रोक दिए। वो तेजी से नूर के करीब आकर कहा कि ये क्या कर रही हो? दरवाजा बंद है। क्यों? कि मुझे तुमसे यही बेवकूफ़ी की उम्मीद थी। तुम्हें यही रहना है। जितनी जल्दी समझ जाओ बेहतर है। अब कोई बेवकूफ़ी मत करना। नूर कोई जवाब न दे सकी और बदलने के बहाने चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई और आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहने लगी, क्यों रो रही हो नूर? अब तो सारी जिंदगी यही रहना है। इसी जिन ने तुम्हें कैद कर लिया है। रोने का कोई फायदा नहीं है। 2 घंटे बाद वो बाहर आई तो उम्मीद थी कि अली सो चुका होगा, मगर जैसे वो बाहर निकली तो देखकर चौंक गई कि अली बिस्तर पर लेटा जाग रहा था और उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। अब वो कुछ कहना नहीं चाहता था। कमरे की मध्यम रोशनी में सुर्ख और सूजी हुई आंखों वाली नूर भी अली को किसी परी से कम नहीं लग रही थी। नूर ने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और सोफे पर लेट गई। रोने और सरदर्द की वजह से जल्द ही नींद की वादी में उतर गई तो अली ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और बीच में तकियों की दीवार बना दी, ताकि नूर को परेशानी ना हो। अली ने कभी उसे इतने प्यार से नहीं देखा था और दिल ही दिल में कहा कि मेरी मोहब्बत मेरे दिल में रहती है तो क्या कभी मैं नूर को अपनी फीलिंग्स बता पाऊंगा? जो दीवार हमारे दरमियान है, क्या कभी गिरा पाऊंगा? अली ने आंखें बंद करके दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे बगैर मांगे ये नेमत अदा की है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सब खुश थे, लेकिन आगा जान की गैर मौजूदगी की वजह से फंक्शन जल्द खत्म कर दिया गया था। सुबह आंख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। जो हैरान रह गई कि मैं तो सोफे पर थी। अली फ्रेश होकर बाहर आया तो नूर जल्दी से उठ खड़ी हो। अली ने उसे देखा, मगर सुबह सुबह उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ जैन ने नीलम के माथे पर बोसा दिया और दोनों के दरमियान मोहब्बत भरी बातें ही।
सब नाश्ते पर मौजूद थे और रात के प्लान्स पर बात हो रही थी कि नूर ने आगा जान को सलाम किया और उनके करीब बैठ के आगा जान ने पूछा, कैसी हो मेरे बच्चा? और सदफ ने भी प्यार किया तो नूर ने मुख्तसर जवाब दिया, जिससे जाहिर था कि वो नाराज है। नूर ने एक बार भी जैन की तरफ नहीं देखा था। सदफ ने कहा कि नीलम और आमिर के साथ पॉलो चली जाना। नूर ने खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। नीलम उसे मनाने आई मगर नूर खामोश रही। जैन के बारे में बात करने पर वो हल्की सी मुस्कुराई मगर नीलम ने महसूस किया कि नूर बात नहीं करना चाहती तो वहां से चली गई। उस दौरान आमिर आया और नूर से पूछा कि क्या तुम खुश हो? नूर ने इनकार में जवाब दिया तो आमिर हैरान रह गया और बोला, अच्छा चलो पोलर जाना है। रात वलीमे में नीलम और नूर दोनों ऑफ वाइट फ्रॉक में बेहद प्यारी लग रही थी। हाल में फोटो शूट हुआ। पहले जैन और नीलम ने पोज दिए, फिर अली और नूर को बुलाया गया। फोटोग्राफर ने अली को कहा कि नूर की कमर में हाथ रखे और एक दूसरे की तरफ देखे। नूर पीछे हटी मगर अली ने झटके से उसे करीब किया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और अली ने कहा, तुम सांस ले सकती हो नूर। नूर जो अपनी सांसें रोके खड़ी थी, नजरें झुका गई। घर आकर उसने अपनी सारी चीजें उतार फेंकी और कहा कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, कभी नहीं। या तो मैं यहाँ रहूंगी या वो। अली कमरे में आया, फ्रेश होकर लाइट ऑफ की और लेट गया। बोला, अगर आज भी सोफे पर लेटी तो तुम्हें उठाऊंगा। नूर वहीं बैठकर रोती रही। अली ने सिसकियों की आवाज पर लाइट ऑन की और करीब आकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? नूर ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर शानों पर डाला। अली ने देखा कि उसके हाथ जख्मी है क्योंकि चूड़ियां उतारते वक्त कट गए थे। अली ने हाथ पकड़ना चाहा तो नूर भागकर चेंजिंग रूम में घुस गई। अली ने दरवाजा खोलने को कहा, सख्त वार्निंग दी मगर नूर ने दरवाजा न खोला। सुबह अली की आंख खुली तो नूर सोफे पर ही सो रही थी। अली को दफ्तर जाना था, वो तैयार होकर चला गया। नूर 11 बजे उठी और शुक्र किया कि हिटलर जा चुका है। फ्रेश होकर वो हॉल में आई जहां नाहिल और आमना बातों में मसरूफ थी। नूर ने देखा कि सामान पैक हो रहा है तो पूछा कि आप जा रहे हैं? नाहिल पुप्पो ने उसे प्यार किया और कहा, हाँ बेटा जाना तो होगा, अंकल की जॉब का मसला है ना, होना होता तो जरूर रुकती। नूर ने जिद की कि रुक जाए मगर वो ना रुकी और शगुफ्ता अंदाज में कहा, अपना ख्याल रखना। नूर ने खुशी खुशी सबको रुखसत किया। सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे और नूर ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते तक नूर और अली के दरमियान कोई बात ना हुई। नूर जानबूझकर अली के दफ्तर जाने के बाद उठती और रात को हॉल में बैठी पढ़ती रहती। अली भी खुद उसे देखकर खामोश रहता। अली वक्त उसे दे रहा था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे और अब उनकी बर्दाश्त उसकी खत्म हो चुकी थी। रात के 12 बजे जब वो हॉल में आया तो नूर अपने आप में मशगूल बैठी थी, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अली ने उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाकर कहा, क्या मसला है तुम्हें? नूर ने कुछ न कहा तो अली ने उसका बाजू थामकर करीब किया, इतना करीब कि उसकी खुशबू महसूस करने लगा और बोला, क्यों दूर रहती हो मुझसे? मेरे बस में नहीं है कि दिल की तर्जुमानी तर्जुमानी करो। बस ये समझ लो कि लफ्ज कम है और मोहब्बत ज्यादा है। नूर ने रोते हुए कहा, बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा। अली ने उसके माथे पर बोसा दे दिया तो नूर ने उसे धक्का देकर खुद को आजाद किया और भाग गई। अगले दिन जब नूर ने मोबाइल देखा तो आमिर का मैसेज था कि क्या प्लान है, इरादा बदल तो नहीं गया? नूर ने जवाब दिया कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती और साथ ही अली की रात वाली हरकत याद आ गई। आमिर तो पहले ही चाहता था कि अली कभी खुश न रहे। शातिराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तैयार होने चला गया। शाम को जब नूर आईने के सामने स्याह फ्रॉक पहनकर तैयार हो रही थी तो अली कमरे में आ गया। उसके सर में दर्द था। उसने पूछा, कहाँ जा रही हो? मगर नूर खामोश रही। अली ने उसे रोकने की कोशिश की और बाजुओं में भरकर कहा, कहीं मत जा। नूर ने गुस्से से पीछे धकेल कर उससे कहा, अब समझते क्या है? मेरी खामोशी का फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सिर्फ आगाजान की वजह से खामोश हूँ, वरना मैं आपसे डरती नहीं। इतने में आमिर ने आवाज दी तो अली ने नूर को छोड़ दिया। नूर अपने होश संभाल कर कमरे से निकल गई और आमिर के साथ सालगिरह पर जाने के लिए तैयार हुई। रास्ते में असद साहब से मिली तो उन्होंने पूछा, कहाँ जा रही हो? नूर ने झूठ बोलकर कहा कि अली ने खुद जाने का कहा है। असद साहब ने दुआ दी तो वो आमिर के साथ निकल गए। रास्ते में नूर ने आमिर का शुक्रिया अदा किया कि उस दिन अगर तुम वादा ना करते तो मैं ना जाने क्या करती। आमिर ने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर सोचा कि ये बेहतरीन मौका है अली को तंग करने का। उसने नूर को यकीन दिलाया कि मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है और मैं तुम्हें इस सूरत हाल से निकाल लूंगा। हालांकि वो दिल से चाहता ही सिर्फ अली को परेशान करना था, लेकिन नूर ने उसकी बात को सच समझ लिया और उसी उम्मीद में बैठी रही। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ।
गिफ्ट ले लिया? हाँ, ये रहा। आमिर, अच्छा नूर, अपना मोबाइल ऑफ कर दो। क्यों? प्लान का हिस्सा है यार, तुम्हें निकलना है ना इस सब से, या नहीं? ओके ओके, कर दिया ऑफ। आमिर ने भी अपना मोबाइल ऑफ कर दिया और दोनों ने पार्टी खूब इंजॉय की। आमिर को नूर बार बार घर जाने का कहती रही, लेकिन वो टालता रहा क्योंकि वो जानता था कि अली परेशान होगा। घर पहुंचते पहुंचते रात का 1 बज गया। नूर ने सोचा कि अली सो गया होगा। वो कमरे में आई, लाइट ऑफ थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक कमरे की लाइट ऑन हो गई और नूर के कदम रुक गए। अली ने सख्त लहजे में कहा, ये कौन सा वक्त है घर आने का? नूर खौफ से खामोश रही। अली बिस्तर से निकलकर उसकी तरफ बढ़ा और बाजू दबोच कर बोला, मोबाइल कहाँ है और मेरे पास रहने का मकसद क्या है? आइंदा जहां जाना हो मेरे साथ जाओगे। ये बात मुझे दोबारा दोहराने पर मजबूर ना करना। नूर रोने लगी और कहने लगी कि मेरा बाजू छोड़े। अली पर उसके आंसू का कोई असर ना हुआ और एक झटके से बाजू छोड़कर कहा, जाओ कपड़े बदलने और वहां मत सोना। नूर ने गुस्से से कहा, आप बहुत बुरे हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, और दरवाजे की तरफ बढ़ी तो अली ने उसे खींच कर अपने सीने से लगा लिया और बोला कि अगर कमरा छोड़ने की बात की तो मुझे बुरा बनने में एक लम्हा नहीं लगेगा। अभी प्यार से समझा रहा हूँ, 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट पे बदल कर आओ, वरना अपने हशर की जिम्मेदार तुम खुद होगी। नूर ने 4 मिनट पे ही कपड़े बदल लिए। अली ने कहा गुड, और जब वो सोफे की तरफ जाने लगी तो अली ने रोक कर कहा, तुम्हारी नज़र कमज़ोर है नूर, ये देखो यहाँ एक हेड बेड मौजूद है और तुम्हारा है, तो तुम क्यों ना बेड पर सो? अगर तुम सोफे पर सोगी तो मैं वहां पर आ जाऊंगा। अब फैसला तुम्हारा है, बेड पर सोना चाहती है या मेरे ज्यादा करीब सोफे पर? नूर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांग रही थी। अली ने कहा, लगता है तुम फैसला नहीं कर पा रही, मैं मदद कर दूं? नूर के जब्त का बंधन टूट चुका था और वो आंखों से आंसू झलकने को उसके बेकरार थे। उसने कहा, प्लीज ऐसा ना करे, मैं आगा जान को शिकायत करूंगी। अली ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ, क्या बताओगी आगा जान को? ये कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? नूर ने कहा, ये मोहब्बत नहीं, मजबूरी है, और एक दिन मैं आपसे तलाक ले लूंगी। ये सुनकर अली को होश उड़ गए और गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और एक जोरदार थप्पड़ नूर के चेहरे पर उसने नसीब किया और कमरा छोड़कर निकल गया। बाहर सदफ ने अली को हॉल में बैठा देखा तो पूछा, क्या हुआ है मेरे बच्चे? अली ने कहा कि सर में दर्द है, इसलिए नींद नहीं आ रही। सदफ ने नरमी से कहा कि अगर नूर से कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाना, वो भी बच्ची है। अली ने कहा, जी चाची जान, सब ठीक है। बाद में अली कमरे में आया तो नूर रो रही थी। वो करीब गया और बोला, नूर प्लीज मेरी बात सुनो। सॉरी जान, प्लीज। नूर ने कहा कि मेरे पास मत आ, वरना मैं आगा जान को सब बता दूंगी कि आपने मुझे मारा है। अली ने कहा, ठीक है, बता देना। फिर उसने नूर को उठाया और पानी दिया। नूर ने इनकार किया तो अली उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके हाथ थाम कर माफी मांगी। अली की आंख से एक आंसू नूर के हाथ पर गिरा तो नूर हैरान रह गई कि ये बाकी अली है। अली ने कहा, सॉरी नूर, मैं वाकई बुरा हूँ, लेकिन तुमसे मोहब्बत करता और तुमसे दूरी का सोच भी नहीं सकता। प्लीज कभी मुझसे जुदा होने की बात मत करना, वरना मैं मर जाऊंगा। नूर बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से उसे देख रही थी कि ये शख्स मुझे पागल बना रहा है और मोहब्बत का झूठ बोल रहा है। वो खड़ी हो गई और कहा, शादी को 15 दिन हुए थे और आपको मुझसे मोहब्बत हो गई? मैं पहले ही समझ गई थी कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अली ने उसे करीब किया और कहा कि तुम मेरी बीवी हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। मैं जब चाहूंगा अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नूर ने कहा कि मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी और आगा जान को सब सच बताऊंगी कि आपने मुझ पर हाथ उठाया है, नहीं रहना मुझे आपके साथ। नूर कमरे से जाने को मुड़ी ही थी कि अली ने आवाज दी, लेकिन वो रुकी नहीं और अपने कमरे में आते ही ऐसे खुश हुई जैसे किसी कैद खाने से आजाद हो गई हो। वो पुरसुकून अंदाज में जल्द ही नींद की वादी में उतर गई, क्योंकि अली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उठा और आगा जान के पास चला गया। नूर की आंख दोपहर 1 बजे खुली। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो आमना और सदफ खाने की तैयारी कर रही थी। नूर ने टेबल पर बैठते, मम्मा नाश्ता बना दे प्लीज। सदफ ने बेटी की तरफ देख कर कहा, ये तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? नूर जो अभी तक खुश थी माँ के पूछने पर उदास हो गई। कुछ बताने ही लगी थी कि आगा जान की बात पर खामोश हो गई और उनके कमरे की तरफ चल दी। आगा जान ने नूर को प्यार किया, पूछा कैसी तबीयत है? फिर सीधा सवाल किया, नूर तुम अली से अलग होना चाहती हो? नूर को इस सवाल की बिल्कुल भी तवक्का नहीं था, उसका सर चकराने लगा। आगा जान ने कहा कि बस हाँ या ना में जवाब दो। नूर ने कहा, नहीं आगा जान, वो तो बस उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और मैंने गुस्से में कह दिया। इस जवाब पर आगा जान
खुश हुए थे और नूर बेचारी बन गई थी, जैसे अली उस पर बहुत जुल्म करता होगा। आगा जान ने उसे समझाया कि बेटा, ये बात किसी से ना करना, और कुछ दिन के बाद दुबई जा रहा है, तुम थोड़ा सब्र करो, जैसे ही वापस आएगा मैं खुद उससे बात करूंगा। नूर ने सर झुका दिया और हाँ कहा और नाश्ता करने के लिए बाहर आ गए। दस्तरख्वान पर सब बैठे थे। असगर साहब ने अली से पूछा कि तुम कब जा रहे हो? अली ने कहा कि कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट है। आमना ने कहा कि अकेले को जा रहे हो? नूर को भी साथ ले जाओ। नूर का दिल कड़वा हो गया। अली ने नूर की तरफ देखे बगैर खाना खाना जारी रखा, लेकिन आगा जान और सदफ ने भी बात मान ली। तो असगर साहब ने फैसला कर दिया कि अली और नूर दोनों जाएंगे। अली कमरे में आकर पैकिंग करने लगा। नूर ने कहा कि आपने मना क्यों नहीं किया? अली ने कहा मेरी कौन सुनता है। नूर ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। अली ने कहा ओके, लेकिन मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। नूर ने कहा तो वो क्या मैं इज्जत नहीं करती? अली ने कहा कि अगर इज्जत करती हो तो खामोशी से मान लो। नूर ने इनकार किया तो अली करीब आया और नूर दीवार से जा लगी। अली ने कहा तुम्हें पता है नूर, तुम बहुत बोलती हो। नूर खामोश हो गई और नजरें झुका ली। एक लम्हे को उसे रात अली के इजहार मोहब्बत की बात याद आई। से पहली बार अली को गौर से देखा। अली ने उसके माथे पर बोसा दिया। नूर ने आंखें बंद कर ली। अली ने उसकी नाक को उंगली से छुआ और कहा चलो पैकिंग कर लो। मगर नूर ने मोबाइल पकड़ा और कमरे से निकल गई। छत पर जाकर आमिर को कहा ये कुछ करो, वो मुझे दुबई ले जाएगा। आमिर ने सोचते हुए कहा नूर, पहले वादा करो कि मेरी बात समझोगी। नूर ने वादा किया तो आमिर ने कहा कि अली तुम्हारा शौहर है और अब तुम्हें सब समझ जाना चाहिए। उस दिन जो कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन तुमने सबके लिए कुर्बानी दी है, तो अब साबित कदम लो। अगर तुम वो करोगी जो सोच रही हो तो सबको तकलीफ होगी। नूर गुस्से से आमिर पर बरस पड़ी और कहा जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आमिर ये बात समझ गया था कि उसके मजाक की वजह से नूर को नुकसान पहुंचा है, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो अली को तंग करने के लिए नूर को इस्तेमाल नहीं करेगा। नूर काफी देर बाद कमरे में आई तो देखा कि सोफे की जगह कुर्सियों ने ले ली है। वो बेड पर सोने का इरादा कर रही थी, मगर पहले यकीन करना चाहती थी कि अली सो गया है कि नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी तो अली को सोते देख सोचा कि जागते हुए कितना सख्त है और सोते हुए कितना मासूम लगता है। इतने में अली ने नूर का हाथ खींच लिया और अली पर जागी। नूर ने छिंछला कर कहा क्या मसला है आपके साथ? अली ने कहा कि मसला बड़ा नहीं है, तुम बस मानती नहीं हो, अपने शौहर से जिद करती हो। शौहर का लफ्ज सुनते ही नूर चौंक गई और कहा कि छोड़ दे, मुझे नींद आ रही है। अली ने कहा कि पक्की नींद या मुझसे दूर जाने की जल्दी है? फिर उसे छोड़ दिया गया। नूर बोली सोफा कहाँ है? मैंने उठा दिया क्योंकि तुम्हें सोफे पर से बहुत प्यार था और मुझे जेलसी होने लगी थी। नूर की आंखें नम होने लगी थी और दिल ही दिल में उसने सोचा कि मुझे कितना बेबस कर दिया है। वो दूसरे किनारे पर बैठ गई तो अली ने लाइट ऑफ कर दी ताकि नूर की परेशानी कुछ कम हो सके। नूर ने खुद को समझाया और वहां लेट गई, जबकि अली उसको बेबस देखकर मुस्कुरा उठा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल लग रही, चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं, असद मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि आज तुमने नूर की गाल पर वो निशान देखा था? जी देखा था, और मैं ये भी जानती हूँ कि जरूर कोई गलती की होगी नूर ने, वरना अली इतना जज्बाती नहीं है। आप सो जाइए, ना सोचिए, बस अपनी बेटी के लिए दुआ किया करें। मेरे दिल तो से तो हर वक्त मेरे बच्चों के लिए दुआएं ही निकलती है। सदफ मेरी बेटी का ख्याल रखा करो। नूर उठो। अली कब से नूर को आवाजें दे रहा था, लेकिन नूर पर कोई असर नहीं हो रहा था। नूर जल्दी से उठकर बैठी। अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैली, जिसको देखकर नूर की आंखें पूरी खुल गई। अब हंसते भी हैं? नूर ने हैरत से पूछा। वो नूर के करीब आकर बैठ गया। नूर झट से पीछे खिसकी। सीख रहा हूँ खुश रहना भी, फिर तुम्हें खुश रखूंगा। नूर जो अली को गौर से दिख रही थी, माथे पर बिखरे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। बंदा इतना बुरा भी नहीं है, ऐसे न देखा करो लोग। सुन, जल्दी से तैयार हो जाओ। अली ने नूर की नाक को उंगली से छुआ। मुझे भूख लगी है, पहले मैं नाश्ता करूंगी। नूर ने अली को तंग करने के लिए कहा। अच्छा तुम जल्दी से जरा पैकिंग करो, मैं रास्ता रूम में ले आता। अली कहते हुए साथ ही बाहर चला गया था। नूर, तुम ख्वाब तो नहीं देख रही? नूर ने खुद को चुटकी काटी। इतने में दरवाजा नॉक हुआ। कौन? असद साहब रूम में दाखिल हो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ। नाराज है मेरी बेटी? नहीं बाबा जान, आप ऑफिस थे गए? कुछ तबीयत ठीक नहीं थी ना? तुम्हारे बाबा ने जाने ही नहीं दिया। अच्छा किया, आप आराम करें। नूर को अपने बाबा बहुत कमजोर लगे। बाबा नूर ने अपने बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, इस दुनिया के बेहतरीन बाबा हैं आप। नूर की आंखों से आंसू बह निकले जो असद साहब दे चुके थे। मेरी जान, खुश हो आप? बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। सच में आपका फैसला ठीक था। बाबा परेशान ना हो, प्लीज डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बड़े बच्चे, तुम खुश हो
तो मैं भी ठीक हूँ। अली के साथ जाओ, बेफिक्र होकर। मैं आज ही डॉक्टर के पास जाऊंगा। बाबा वादा करें। वादा मेरे बच्चे, वादा। असद साहिब ने नूर को प्यार से कहा, लव यू बाबा जान। लव यू टू मेरे बच्चे। जैसे जान थोड़ा प्यार मेरे लिए भी बचा ले। मेरा प्यार मेरे बच्चों के लिए ही तो है। अली ने असद साहिब से प्यार लिया। चाचा जान नाश्ता करेंगे हमारे साथ? क्यों नहीं, लाए नाश्ता। अली, आपकी बेटी का हुक्म था। नूर ने फौरन अली की तरफ देखा। अली ने भी मुस्कुरा दिया, नहीं बाबा जान, इन्होंने खुद कहा था। जो भी था, असद साहिब और अली और नूर को खुश देखकर वो बहुत खुश थे। उन्होंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनको दुआएं देते कमरे से चले गए थे। मैं नहीं बोलती आपसे, आपने बाबा के सामने ऐसा क्यों कहा? नूर मुंह बनाकर बैठ गई थी। अली को नूर के रूठने पर बहुत प्यार आया। वो नाश्ता लिए नूर के पास आया और कहा, तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल बीवियों वाली हरकत कर रही हो। मैं शोहर वाली हरकत करूं तो नाराज मत होना। नूर अली की बात का माफूम समझते ही नाश्ता करने लगी। अली भी नूर के साथ नाश्ता करने लगा। बस और नहीं खाया जा रहा और मेरा दिल कर रहा कि सब खा जाओ। अली ने शरारत से नूर की तरफ देखा। मुझे तैयारी करनी है। नूर कहते ही उठकर चली गई। चलो भाई, नूर देर हो जाएगी, बाहर सब वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ। ये तुम तीसरी दफा कह रही हो नूर। नूर चेंजिंग रूम से बाहर आई तो अली अपने आंखें हटाना भूल गया। वो जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे ना देखे प्लीज। नूर अली की नजरों से कंफ्यूज हुई थी। चले नहीं, बस 2 मिनट। नूर ने जल्दी से पोनी टील की और चलने के लिए तैयार की। अली नूर की तरफ आया तो नूर ने झट से अपनी आंखें बंद की। तुम दिन ब दिन प्यारी प्यारी होती जा रही हो, अली ने नूर के कान में कहा और बाहर की तरफ चल दिया। नूर ने अपनी सांसें बहाल की और अली के पीछे चल दी। बाहर सब वेट कर रहे थे। नूर सबसे अच्छे से मिली। जैन और बाबा से मिलते हुए नूर बहुत उदास हुई। मैं आपको बहुत मिस करूंगी बाबा जान। आपको अपना वादा याद है ना? जी मेरी जान, याद है। आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। जैन और नीलम उनके साथ एयरपोर्ट तक से छोड़ने गए। नूर अपना बहुत ख्याल रखना। जी। नूर कब तक नाराज रहोगी यार? मान जाओ ना। मैं नाराज तो नहीं हूँ भाभी, ये तो बस झूठ बोल रही है। चलो जाओ, टाइम हो रहा। वापिस अपना मूड ठीक करके आना। अल्लाह हाफिज भाभी। खुदा हाफिज। नूर भाई से भी नहीं मिलोगी क्या? नूर जैन की आवाज पर रुकी। प्लीज माफ कर दो अपने भाई को, प्लीज। जैन भाई ऐसे ना बोले। नूर जैन के पास आई। मुझे पता है मेरी बहन ज्यादा देर मुझसे नाराज नहीं रह सकती। भाई मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। आप बस मामा बाबा का ख्याल रखें। मेरा दिल नहीं कर रहा उनको छोड़कर जाने को। ये कहने की बात है नो, तुम आराम से जाओ, यहाँ हम सब हैं। नीलम और जैन उनको रुखसत करके गाड़ी में आ गए थे। असद साहब, आपको आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने असद साहब को बहुत हदायत दी, लेकिन वो वहां से सीधा अपने ऑफिस चले गए। नूर और अली क्रिस्टल हाउस पहुंच चुके थे। कमरे में दाखिल होते ही नूर बिस्तर पर घुस गई थी। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे सोना है। पहले फ्रेश तो हो जाओ। नूर उठो, नहीं मुझे नींद आई है। नूर ने बिस्तर के अंदर से ही आवाज दी। कुछ नहीं हो सकता इस बेटी का, अली ने सोचा और फ्रेश होने चला गया। नूर को सोए हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। अली को भी लैपटॉप पर काम करते करते भूख का एहसास हुआ और उसने सोचा कि नूर ने कभी कुछ खाया कि नहीं। अली उठा और नूर को जगाने लगा। काफी आवाजें देने के बाद भी नूर नहीं थी। अली ने नूर को देखा जो हर फिक्र से आजाद सुकून से सोई थी। अली ने उसके माथे पर प्यार किया और दोबारा उसे नहीं जगाया। रात के 1 बजे नूर की आंख खुली। अली सो रहा था। वो उठकर फ्रेश हुई। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करूं? वो कमरे में चक्कर लगाते सोच रही थी। पिज्जा? लेकिन ये तो पाकिस्तान नहीं, मेरे पास यहाँ कोई नंबर भी नहीं है। थक हार कर अली को जगाने का फैसला किया। अब उनको कैसे जगाऊं? बहुत सोच कर नूर ने अली से चादर खींची। क्या हुआ? क्या हुआ नूर? अली डर गया। मुझे भूख लगी है। अली ने सुकून की सांस ली। ऐसे उठाते हैं नूर? और कैसे उठाती? उसने नूर के सवाल पर हैरत से देखा। आवाज दे देती यार। अच्छा बताओ क्या खाना है? कुछ नहीं, अच्छा सा भूख लगी है। हनी ने फोन पर ऑर्डर दिया। नूर, तुम खुद भी ऑर्डर दे सकती थी ना। जी मेरे जहन में नहीं आया। नूर शर्मिंदा सी हुई। कोई बात नहीं, अच्छा किया उठा दिया मुझे। मुझे भी भूख लगी थी, मैंने तुम्हें उठाया, लेकिन तुम नहीं उठी थी। इतने में दरवाजा नॉक हुआ। खाना आ गया। नूर तो जैसे उछल पड़ी। अली ने खाना रिसीव किया, नूर की तरफ ले आया। लगता है कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। नूर ने फौरन खाना शुरू किया। खाने से फारिग हुए तो अली की नींद उड़ चुकी थी। बाहर चले? इस टाइम? तो क्या हुआ? मेरी मीटिंग कल 4 बजे है, जाना चाहती हो तो चलते हैं, ओके? नूर जल्दी से रेडी हो गई थी। अली मोबाइल पर बिजी हो गया था। नूर कितनी देर वेट करती रही, आखिर थक कर बैठ गई।
15 मिनट बाद अली ने आवाज़ दी, चलो नूर, मुझे नहीं जाना। क्यों, अब क्या हुआ है? मेरा मूड नहीं है अब। अली मुस्कुराया, सोच लो, मेरा कुछ मूड बन गया तो? नूर अली की बात समझते हुए फौरन उठ गए थे। अली हंसा था। नूर ने गौर से अली की तरफ देखा। क्या ये वही है या कोई और? मेरी नीली पड़ी, उठ जाओ यार, मैं लेट हो जाऊंगा। प्लीज जैन, सोने दो। ओके, फिर मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। रुको जैन, आ रही हूँ। शाबाश, जल्दी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बगैर मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अब बहुत तंग करते हैं। जैन तंग नहीं करता जानी, प्यार करता है। जैन नीलम की तरफ पड़ा। ओके ओके, समझ गए, आप चले, मैं आती हूँ। जैन मुस्कुरा कर बाहर निकल गया। नूर घर में नहीं तो रौनक ही नहीं है। मैं उदास हो गया हूँ। हाँ, ये तो सही बात है, इस घर की रौनक नूर से ही है। आगा जान ने भी तायद की। हाँ सर, तुम ठीक खाना नहीं खा रहे, क्या बात है? कुछ नहीं आगा जान, बस दिल घबरा रहा है। चाचा जान, आप नाश्ता करें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं जैन बेटा, मैं गया था, मेडिसिन भी ले ली है। चाचा जान, आप आराम करें, आज ऑफिस नहीं जाइएगा। जैन को बहुत फिक्र हुई। खुश रहो मेरे बच्चों। नूर, नाश्ते में क्या लोगी? कुछ भी। क्या हुआ? घर कॉल कर रही हूँ लेकिन हो ही नहीं रही। मुझे बाबा से बात करनी है। परेशान नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत कोशिश के बाद कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची। मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? मेरी जान, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मा पापा की तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर है, डॉक्टर के पास गए थे। तुम परेशान नहीं हो? घर है तो मेरी बात से करवा दें, अगर वो है तो। वो सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बात करवा दूंगी। बात करने के बाद नूर और परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि उसके बाबा इस वक्त किसी भी कभी भी नहीं सोते। नाश्ता आ चुका था जो नूर ने ठीक से नहीं किया था। अली मुसलसल नूर की परेशानी नोट कर रहा था। नूर, तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर तक सो जाऊंगा, फिर मीटिंग में भी मुझे जाना है। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। नूर, अली ने नूर के हाथ हाथ में अपना हाथों में लिए। परेशान नहीं हो, यहाँ का काम खत्म होती है, हम जल्दी वापस जाएंगे। नूर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। चलो, थक गई होगी तो उठो और सो जाओ। दोपहर 2 बजे अली की आंख खुली। उठते उसकी नजर अपने पास पड़े सोए हुए वजूद पर पड़ी। अली के होठों पर मुस्कुराहट फैली। मेरी जान, परेशान तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अली ने नूर के सर पर अपना हाथ रखा। अली फ्रेश होकर मीटिंग में चला गया था। नूर की आंख 3 बजे खुली। अली को कमरे में ना देखकर वो समझ गई कि वो जा चुका है। नूर बेचैन सी हुई। क्या मुझे उसकी आदत हो रही है? नहीं, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ? सोचने में हर्ज ही क्या है? वो मेरे शौहर है। नूर को उस रात अली का इजहार मोहब्बत याद आया तो नूर मुस्कुराई। क्या था उस दिन उसकी आंखों में मेरे लिए? मोहब्बत, फिक्र या डर मुझसे दूर होने का? माँ बाप हमेशा अच्छा ही फैसला करते हैं अपनी औलाद के लिए। शायद ये हमें समझने में देर हो जाती है। बाबा का ख्याल आते ही नूर ने कॉल करने का सोचा, लेकिन मोबाइल तो उनके पास। फोन। नूर फ्रेश हुई और कमरे में वो बोर होने लगी। बाहर चले जाओ, नहीं वो आगे तो मुझे ढूंढेंगे, मैं जल्द आ जाऊंगी। नूर खुद से ही सवाल करती और गुस्से में जवाब देती बाहर चली गई। अली वापस आया तो नूर को कमरे में ना पाकर परेशान हुआ। जल्द ही बाहर नूर को ढूंढने निकला। कहाँ हो नूर? अली कॉफी पर नूर को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। कहीं वो होटल वापस? जहन में आते ही अली होटल की तरफ चल पड़ा। अली ने दरवाजा खोला तो रूम में कोई नहीं था। अली को बहुत मायूसी हुई। वापस जाने के लिए मुड़ा ही था जब दरवाजा खुलने की आवाज पर रुका। नूर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ रही थी। अली ने नूर को देखते आगे बढ़कर नूर को गले से लगा लिया। यार, कहाँ चली गई थी तुम नूर? नूर हैरान हुई। क्या हुआ? अली की आंखें नम थी। तुम यहाँ नहीं थी, मैं बहुत परेशान हो गया था यार। फोन भी साथ नहीं था, मैं करीबी पार्क में गई थी। नूर अली की हालत देखकर शर्मिंदा हो। सॉरी, मैं बोर हो रही थी तो पार्क में चली गई, मुझे लगा मैं आपके आने से पहले आ जाऊंगी। अली कुछ रिलैक्स हुआ तो अली को देखकर मुस्कुराई। ये शख्स देखने में तो बहुत रूप वाला और संजीदा है, लेकिन अंदर से बहुत नरम और केयर करने वाला है। मेरी जान निकाल दी थी यार। अब मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। नूर ने अपना सर हिलाया। हम बाबा के पास कब जाएंगे? बस कल काम खत्म हो जाएगा और फिर वापस चलेंगे। आमिर बेटा, आमिर। सदफ आमिर को आवाजें दे रही थी। क्या हुआ चाची? आमिर कमरे में दाखिल हुआ। खैरियत? जैन बेटा, आपके चाचा की तबीयत ठीक नहीं है। सदफ ने रोते हुए बताया तो जैन चाचा के कमरे की तरफ भागा और जल्दी इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सदफ, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, आमना ने तसल्ली दी। जैन, जी चाची। बेटा, नूर को नहीं पता, वो परेशान हो जाएगी। जी आप फिक्र नहीं करे चाची। अली सो चुका था मगर नींद नूर को नहीं आ रही थी। मोट बैठी और आहिस्ता से कहा, आप सो गए हैं? कोई जवाब ना आया। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई मगर कोई उठा ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश के बाद कॉल रिसीव ना हुई तो नूर वापस आकर लेट गई। असद शायद अस्पताल से वापस आ चुके थे।
سامنے علی اور نور کو دیکھ کر پھر سے جی اٹھے تھے۔ جاؤ میرے بچے، آرام کرو، اللہ میرے بچوں پر اپنا کرم کرے۔ علی کمرے میں آئے تو نور نماز پڑھ رہی تھی۔ علی خاموشی سے لیٹ گیا۔ نور نماز سے فارغ ہوئی تو علی پر نظر پڑی جو نور کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نور کنفیوز ہوئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اپنے نور کو۔ علی نور کی طرف بڑھا۔ نور اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کیا مانگا اللہ سے؟ آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ علی نے قریب آ کر نور کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ آج نور نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ آخر علی نے نور کو اپنی رنگ میں رنگ ہی دیا تھا۔ آمنہ بھابی، عامر کی شادی کر دینے چاہیے۔ صدف کے مشورے پر آمنہ نے بھی حامی بڑھی۔ ہاں صدف، گھر کا ماحول بھی بہتر ہوگا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ علی، میرا دل کرتا ہے کہ ہم عمرے پر جائیں۔ تو ٹھیک ہے میری جان، کیوں نہیں، ہم دونوں چلیں گے۔ کب میری جان؟ سانس تو لو، انتظار کرتا ہوں۔ علی نے نور کے ماتھے پر پیار کیا اور آفس چلا گیا۔ آج وہ صحن حرم میں کھڑے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ۔ آنسو روا تھے جن کو روکنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ وہ رو رو کر اپنے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اپنے ساتھ کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ نور کی زندگی جس سفر سے گزری تھی وہ قرب، ضد، انا، زبردستی اور تلخیوں سے بڑا ہوا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دلوں کی سختیاں بھی نرم پڑی تھی۔ حالات کی دور چھٹنے لگی تھی اور وہ حقیقتیں سامنے آتی ہیں جو انسان کو اپنی ضد چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ نور کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ نکاح کے بعد کے دن اس کے لیے قید خانہ لگتے تھے۔ وہ علی کو سخت دل اور بے رحم سمجھتی رہی، لیکن علی کے عمل، اس کے صبر اور برداشت نے آہستہ آہستہ نور کے دل کو چھو لیا۔ اس کے سخت جملوں کے پیچھے چھپی محبت، اس کی نظروں میں چھپے درد نے نور کو بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جو ہمیشہ ضد میں آ کر دروازہ بند کر دیتی تھی، اب دروازہ کھلا چھوڑ دیتی۔ وہ جو ہر بات پر غصہ کر کے ماں کے پاس بھاگتی تھی، اب خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر سوچتی رہتی کہ آخر علی کے لہجے میں اتنی تلخی کیوں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور نور نے محسوس کیا کہ علی کا رویہ اس کی سوچ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ ہر وقت اس کی خوشیوں کے لیے فکر مند رہتا ہے، رات گئے تک جاگ کر اس کے لیے چیزیں پلان کرتا ہے، اس کی ہر ضد پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے اپنے والدین اور گھر والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے۔ نور کا دل جو شروع دن سے علی سے نفرت میں ڈوبا ہوا تھا، آہستہ آہستہ سکون کی طرف مائل ہونے لگا۔ محبت کا بیج خاموشی سے اس کے دل میں اگایا تھا۔ وہ خود حیران تھی کہ کیسے یہ سب بدل رہا ہے، لیکن یہ بدلاؤ حقیقت تھا۔ علی اب اس کے لیے وہ شخص نہیں رہا تھا جس سے وہ بھاگتی تھی، بلکہ وہ ایک سہارا تھا جس کے بغیر نور کو اپنی سانسیں بھی ادھوری لگتی تھی۔ اور جب ایک دن نور نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو غور سے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور اعتراف بھی کہ ہاں، وہ علی سے محبت کرنے لگی ہے۔ گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ آغا جان جو سخت مزاج اور فیصلہ کرنے میں سختی دکھاتے تھے، وہ بھی نور اور علی کی خوشیوں میں اب نرم پڑنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کو مسکراتے دیکھنے کی خوشی نمایاں تھی۔ عامر جو ایک وقت میں علی اور نور کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اب خود ہی شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ علی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور نور کی قسمت میں وہی لکھا ہے۔ صدف بیگم بھی خوش تھی کہ ان کی بیٹی آخر کار اپنی زندگی میں سکون پا گئی ہے۔ نیلم اور زین کی محبت بھی اب سب کے سامنے قبول کر لی گئی تھی، اور گھر میں ایک سکون اور اطمینان کا ماحول قائم ہو گیا تھا۔ وہ جھگڑے، وہ طلاق باتیں، وہ الزام تراشیاں، سب وقت کی دھول میں دب گئے تھے۔ اب رہ گیا تو صرف خوشی کا احساس، محبت کی خوشبو اور سکون کی فضا۔ نور کی زندگی میں سب سے حسین لمحہ وہ تھا جب اس نے جانا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ علی نے جب اسے سہارا دیا، اس کے آنسو صاف کیے، تو نور نے پہلی بار علی کے سینے سے لپٹ کر دل کی گہرائیوں سے کہا کہ میں خوش ہوں۔ تم نے مجھے وہ سب دیا جس کی میں نے کبھی دعا بھی نہیں کی تھی۔ اور علی کے لیے الفاظ دنیا کی قیمتی چیزوں میں سے ایک تھے۔ اس نے نور کو اپنی بازوں میں سمیٹ کر کہا کہ یہ سب تمہارا حق ہے اور یہ سب ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ وقت گزرتا گیا، نور کے چہرے پر ماں بننے کی خوشی نمایاں ہونے لگی۔ گھر والے اس کے گرد خوشیوں کی ڈھال بن گئے۔ آغا جان ہر وقت اس کی دیکھ بھال کرتے، صدف بیگم اس کی ہر خواہش پوری کرتی، فکر مند رہتی، نیلم اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی، اور زین اسے کہانیوں میں الجھائے رکھتا تاکہ اس کا دل بہلتا رہے۔ اور علی تو ہر لمحہ اس کے ساتھ تھا، کبھی اس کے قدموں کے نیچے تکیہ رکھ رہا ہوتا تو کبھی اس کے لیے پھل کاٹ رہا ہوتا، کبھی رات کے سناٹے میں جاگ کر نور کے ہاتھ تھامے بیٹھا رہتا۔ نور حیران ہوتی کہ یہ وہی علی ہے جسے وہ سخت دل سمجھتی تھی،
اور آج وہی اس کی دنیا کا سب سے نرم اور خوبصورت جذبہ بن گیا تھا۔ جب وہ لمحہ آیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا تو گھر خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ ہسپتال کی گیلری میں علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کی دعائیں لبوں پر تھی اور آنکھوں میں بے چینی۔ لیکن جیسے ہی نرس نے آ کر خوشخبری سنائی کہ نور نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دوڑتے ہوئے اندر گیا، نور کو تھکاوٹ سے نہ ڈال لیکن مسکراتا ہوا پایا۔ نور نے اپنے ہاتھوں میں ننھے سے وجود کو تھام رکھا تھا۔ علی نے جھک کر دونوں کو اپنے بازو میں لے لیا اور پہلی بار علی کی سخت آنکھوں میں سب نے محبت کا وہ سمندر دیکھا جس کا گواہ صرف نور تھی۔ آغا جان نے اذان دے کر بچے کے کان میں اللہ کا نام بلند کیا اور اس کا نام زاویہ رکھا۔ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ ماں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے بلند ہو گئے۔ نیلم اور زین کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ مسکراہٹ تھی۔ عامر بھی نور کو خوش دیکھ کر پیچھے کھڑا دعا دے رہا تھا اور نور کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی کہ اس کی زندگی کا سفر اب مکمل ہو گیا ہے۔ وہ آج صرف بیوی نہیں رہی تھی بلکہ ماں بھی بن گئی تھی۔ اس کے خاندان مکمل ہو گیا تھا۔ علی اب ہر لمحہ نور کی خوشیوں کے لیے جیتا تھا۔ وہ اسے کہتا تھا، نور تم میری دعا ہو اور یہ بیٹا ہماری دعا کی تکمیل ہے۔ اور نور ہنس کر کہتی، دعا تو میں تھی مگر قبولیت تم ہو۔ یہ جملہ علی کے دل کو ایسے چھوتا جیسے اس کی ساری زندگی کا حاصل یہی ہو۔ نور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی اب مکمل ہے، تم میرے پاس ہو، زاویہ میرے پاس ہے، میرے والدین اور بہن بھائی خوش ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ نور نے علی کا ہاتھ تھام کر کہا، مکمل تو تم نے مجھے کیا علی، ورنہ میں تو بس ضدی اور اکھڑ لڑکی تھی۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھائی، یہ سب تمہارے بغیر ممکن نہیں تھا۔ علی نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تم میرے خوابوں کی تعبیر ہو نور، اور یہ بچہ ہمارے خوابوں کی حقیقت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آخری سانس تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ مسکراتے ہوئے اسے خود میں بیج گیا تھا۔ یوں وقت نے وہ سب زخم بھر دیے جو کبھی ناقابل برداشت لگتے تھے۔ وہ تلخیاں جو کبھی نور کے دل کو کاٹتی تھی اب محض دھندلے سائے رہ گئے تھے۔ گھر کی فضاؤں میں سکون، محبت اور ہنسی گونجنے لگی تھی۔ نور نے اپنے سفر پر نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ زندگی ہمیشہ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی، لیکن جب رب کی مرضی شامل ہو جائے تو پھر یہ راستہ محبت، خوشی اور سکون کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اس کا گھر مکمل ہو گیا تھا، اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کا دل اب علی کے ساتھ مطمئن تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا انجام کسی زبردستی یا نفرت پر نہیں بلکہ محبت، قربانی اور دعا پر ہوا ہے، اور یہی انجام اس کی اصل کامیابی ہے۔